Hello students, in the last class we discussed about factors of production. Today we are going to discuss about trade cycle, and I think with the help, this would be the last topic of your chapter. So as and when we complete this topic, I want all of you to complete your exercise which is given at the end of the chapter. The questions which you have already done, you have to put a note कि भाई this has been already done during the, you can say, sessions, different sessions which we were having. Okay, so I want you to complete your homework. There was a vacation, 3 दिन का vacation है, so you enjoyed the vacation. Now start working on for your studies. Okay. Hello students, in the last class we discussed about your 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. Yes or no? Now in this class we'll start with your new topic, that is your trade cycle. So let us start with it. Trade cycle जो है, I would compare it with your seasons. ठीक है? For example, we have right now monsoon is going on. So after monsoon what will come? We all know after monsoon you will have winter. ठीक है? And after winter you will have summer, then again autumn, and then you can say again you will have, you can say, monsoon. So there are certain things which are for certain कि भाई ये season के पास ये आएगा, and in some cases it may happen that during a winter कि भाई winter चल रहा है और अचानक आपको बारिश हो जाए. कई बार होता है winter में monsoon आता है. Same way during summer there may be monsoon, and due to summer में, यानी summer के सीज़न में अप्रैल में कभी कभी बारिश हो जाती है, मानसून आता है, उसकी वजह से थोड़ी ठंड हो जाती है, तो we have the feeling of winter. So the thing is, trade cycle is something like this. It is you can say changes which take place in our individuals life. साइकिल का मतलब होता है चेंजेस विच टेक प्लेस इन आवर इंडिविजुअल लाइफ. अब उसमें से 2-4 टाइप के हैं आपकी साइकिल: इरेगुलर साइकिल, सीजनल, लॉन्ग रन, डायनामिक एंड लॉन्ग रन ट्रेंड. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन. इरेगुलर चेंजेस वी डोंट नो व्हाट वुड हैपन, लाइक फॉर एग्जांपल कोरोना इज अ irregular change due to which whatever change is seen in the economy, that is irregular. Once in a millennium it happens. ठीक है, it is not compulsory that it would happen every year. जैसे हर साल बारिश आएगी ये होने वाला है, बट हर साल कोरोना होगा ऐसा नहीं होगा, तो इट इज़ irregular changes. ठीक है, so the thing is there are accidental changes which occurs in the economy like flood, famine, storm, fire. उसकी वजह से इकोनॉमी जब डाउन होती है, that is known as irregular changes. Yes or no? In some cases that creates you can say opportunities as well, but this changes normally leads to, you can say, downfall. ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई चेंजेस आ गए, अचानक से जो क्रॉप है इस साल बहुत ही अच्छा निकला, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इट वॉज अनसीन, इरेगुलर. ठीक है, तो दैट इज़ इरेगुलर चेंजेस. सेकेंड इज सीजनल चेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया था. इट चेंजेस, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मानसून है, ड्यूरिंग मानसून किसकी डिमांड रहेगी? अम्ब्रेला. देयर वुड बी डिमांड ऑफ अम्ब्रेला, सो अम्ब्रेला की डिमांड हाई रहेगी, दैट इज़ अ सीजनल चेंज. ड्यूरिंग विंटर वुलन्स की जो डिमांड रहेगी, वुलन्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी. सो ऑल दिस कम्स अंडर योर सीजनल चेंजेस कि भाई कई सीज़न में कुछ गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, कुछ गुड्स की डिमांड कम हो जाती है. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग विंटर, जैसे मैंने बताया, विंटर कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड क्या हो जाती है? कॉटन क्लॉथ्स डिमांड वुड रिड्यूस. यस और नो? तो दैट इज़ योर सीजनल चेंजेस. लॉन्ग रन चेंजेस, ठीक है, वो कब होती है? इट इज़ समथिंग विच टेक्स टाइम टू टाइम. बोलते हैं ना, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे. Rome is not built in a day. India is a developing economy, yes or no? And India wants to become a developed economy.
सो जो भी इकोनॉमिस्ट है वो बोलते हैं कि 2040 तक या 2048 तक वी विल बिकम डेवलप इकोनॉमी। अभी आगे भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। सो दैट इज़ अ लॉन्ग चेंज विच यू कैन से चेंजेस धीरे धीरे धीरे, जैसे फॉर या फिर पॉपुलेशन चेंजेस एक दिन में नहीं, पॉपुलेशन 100 करोड़ से 200 करोड़ एक दिन में नहीं होगी, इट टेक्स ईयर्स। धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ रही है। इन आवर केस द ग्रोथ रेट इज़ हाई, बट येस इट इंक्रीजेस इन अ लॉन्ग रन एंड इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन आवर यू कैन से इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल रोड्स है ना, रोड्स पर एम्प्टी 2050 की 60 की बात करें तो रोड सारी एम्प्टी रहती थी। अभी 2020 की बात करें तो रोड्स क्या है, दे आर ऑल फुल ऑफ ट्रैफिक। और अगर यही ट्रेंड रहा ऑफ वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड रहा तो शायद फिर से ऐसा हो सकता है कि 2025 में फिर से रोड पे कोई ना दिखे, सब लोग घर पे से काम कर रहे हैं, किसी को घर से बाहर निकलना ही नहीं है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। किसकी वजह से? पॉल्यूशन। लोगों के घर से बाहर निकलना क्या हो जाएगा, दुबर हो जाएगा। तो दिस आर ऑल लॉन्ग टर्म चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी योर साइक्लिकल चेंजेस। साइक्लिकल चेंजेस क्या होता है, साइकिल को कैसे बताते हैं? जैसे साइकिल में एक मैं आपको ट्रेंड बताती हूँ साइकिल का, साइक्लिकल चेंज का इस तरह से ट्रेंड होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली देयर वुड बी इन्फ्लेशन। आई थिंक आई एम गोइंग आउट ऑफ द स्क्रीन, मैं यहाँ पर बनाती हूँ। इनिशियली देयर वुड बी इन्फ्लेशन, ठीक है। देन उसको नीचे आएंगे तो देयर वुड बी रिसेशन। देन उससे ऊपर उठेंगे तो नीचे जाएंगे तो फिर डिप्रेशन। देन यू विल हैव रिकवरी एंड रिकवरी से फिर आगे जाएंगे तो देयर वुड बी इन्फ्लेशन। ये क्या है? एक साइकिल है। जैसे समर विंटर मॉनसून का एक साइकिल होता है, सेम वे यू कैन से इन्फ्लेशन, डिप्रेशन और यू कैन से इन सबका एक साइकिल रहता है। ठीक है, तो दैट इज़ योर साइक्लिकल चेंजेस। ओके, इट इज़ नोन एज स्ट्रेट साइकिल। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट साइकिल। इट विल हैपन। मैं आपको बता सकती हूँ कि राइट नाउ डिप्रेशन इज गोइंग ऑन ना इन आवर इकोनॉमी। राइट नाउ डिप्रेशन इज गोइंग ऑन, मतलब मंदी चल रही है। आई नो आफ्टर डिप्रेशन वी विल हैव रिकवरी, ऐसा ही होता है। ठीक है, और रिकवरी के बाद में क्या होगा? यू कैन से इन्फ्लेशन, फिर रिसेशन और फिर डिप्रेशन। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रेड साइकिल। लेट अस मूव फर्दर। ट्रेड साइकिल क्या है? ट्रेड साइकिल इज अ इंटरवल दैट एम्ब्रेसेस अल्टरनिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिप्रेशन का मूवमेंट जो बताता है दैट इज ट्रेड साइकिल। ठीक है, अगर मैं उसका एक डायग्राम बनाऊँ, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मेक दिस डायग्राम। आप ऐसे बना सकते हो, इन्फ्लेशन उससे नीचे आएगा, देयर वुड बी इन्फ्लेशन से नीचे आएंगे तो देयर वुड बी रिसेशन। जैसे बॉल होता है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वैसे ही रिसेशन से बाद में नीचे, एकदम नीचे आ जाएंगे तो देयर वुड बी डिप्रेशन, और डिप्रेशन से ऊपर जाएंगे तो होगा रिकवरी। तो अभी डिप्रेशन चल रहा है तो डिप्रेशन से ऊपर रिकवरी आएगा, रिकवरी के बाद में इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन के बाद में रिसेशन आएगा, उसके बाद में डिप्रेशन। तो जैसे एक साइकिल का पहिया घूमता रहता है, सेम वे ये इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी का पहिया घूमता ही रहता है इन द इकोनॉमी। क्लियर? लेट अस मूव फर्दर। फर्स्ट इज योर बूम। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बूम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम रिसेशन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम डिप्रेशन, रिकवरी, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ दिस। So we'll start from you can say boom. Boom is a time where you can say production is high. Sorry, not production is high. Prices are high. Prices are high due to which you can say प्रोडक्शन इज़ हाई. वाई? ड्यू टू, अगर प्राइस हाई है तो प्रोडक्शन क्यों आएगा होगा? क्योंकि सप्लायर को प्रॉफिट हो रहा है. सप्लायर इज हैविंग प्रॉफिट, सो प्राइस इज हाई, ड्यू टू दैट प्रोडक्शन इज हाई. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एज द प्रोडक्शन इज हाई, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उन सबको प्रॉफिट जो है, लैंड को क्या मिलता है? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट.
इन सबको ये सब क्या बोल रहा है, इट इज़ हाई. सो एवरी वन इज़ अर्निंग, सब लोग को प्रॉफिट हो रहा है, एवरी वन इज़ अर्निंग. सो दैट इज़ सिचुएशन. सबके पास बहुत पैसा है, देयर इज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी इन देयर इन द इकोनॉमी. तो प्रॉब्लम क्या है? सी, लिटिल बिट ऑफ बूम इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, बट जब ये बूम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि भाई जो पैसा है वो पैसा, मनी की जो वैल्यू है ड्यूरिंग द यू कैन से इन्फ्लेशन इट गोज डाउन. अब आप पूछोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है ना, गोल्ड वॉज 30,000 बिफोर, 36,000 बिफोर फ्यू मंथ्स. कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले गोल्ड का भाव फॉर एग्जाम्पल 36,000. अभी गोल्ड का भाव क्या है? 51,000. So the thing which you are getting for 31,000, now you have to pay for that 51,000. So you got my point? Even if you have more money, आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है because prices are increasing to such a high extent. मतलब आपके 10,000 की वैल्यू, if you have 10,000, so due to inflation, your value of your 10,000 would be 7,000 or maybe 6,000. और मे बी 5,000. यानी आपके 10,000 की वैल्यू, आप भले 10,000 कमा रहे हो, आप खुश हो रहे हो कि आई एम अर्निंग 10,000, बट दैट 10,000 अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो योर वैल्यू हैज़ रिड्यूस. उसकी वैल्यू कितनी है? 7,000. बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन और बूम इज़ अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर टू मच मनी chases टू लेस गुड्स कम है, लेकिन पैसे उसको देने जो पड़ना है, हमको जो पैसे देने पड़ रहे हैं गुड्स के लिए वो ज़्यादा है. ठीक है, तो टू मच मनी इज चेसिंग द टू लेस ऑफ द गुड्स. तो बूम इज़ गुड बट ओनली फॉर द वन हु आर एम्प्लॉयड एंड हु आर अर्निंग हाई. जिसकी एम्प्लॉयमेंट है, जिसके पास में पैसे हैं और उसकी अर्निंग ज़्यादा है, उसके लिए बूम अच्छा है. बट द पर्सन हु इज़ अनएम्प्लॉयड, अगर आप बूम के टाइम पे अनएम्प्लॉयड हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. क्योंकि पहले जो 100 रुपये में जो काम चलता था, अब उसके लिए आपको 400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. और कहने का मतलब ये है कि पहले से इनकम की प्रॉब्लम है, तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ बूम. ठीक है, और अभी वी विल गो टू द रिसेशन. अब ये क्या है? बूम इज़ अ सिचुएशन, ग्रोथ बहुत हाई हो जाता है तो प्राइसेस बहुत हाई हो जाती है. तो प्राइसेस फॉर एग्जांपल, मैंने प्राइस की एग्जांपल दी गोल्ड की मैंने एग्जांपल दिया कि गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, बढ़ गई है. उसकी वजह से आई विल नॉट परचेज गोल्ड. सप्लाई विल बी हाई बट डिमांड विल बी लेस. क्यों? बिकॉज एज पर लॉ ऑफ डिमांड आई विल परचेज ओनली एंड ओनली व्हेन द प्राइसेस आर लो. तो मैं गोल्ड को परचेज नहीं करूँगी. अगर ये लॉन्ग टर्म चलता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? द गोल्ड प्राइस ऑफ गोल्ड विल रिड्यूस. गोल्ड 51,000 है, कोई नहीं खरीद रहा, पड़ा है तो क्या करेंगे? फिर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी लेकिन डिमांड नहीं होगी. और जब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड नहीं होती है, देन व्हाट विल हैपन? वी विल हैव रिसेशन. सो फ्रॉम बूम वी विल मूव टूवर्ड्स रिसेशन, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी हाईएस्ट पीक लेवल पे पहुंच गई है. तो ये क्या होगा? एक स्लो डाउन होता है. जैसे हम फुल स्पीड पे 100 की स्पीड पे चल रहे हैं तो फिर धीरे धीरे फिर हमको क्या लगता है धीरे धीरे कि भैया बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम लोग 90 पे जाएंगे, फिर 90 यू कैन से 80 पे जाएंगे. स्लोली एंड स्टडीली वी विल रिड्यूस, वी विल पुट अ ब्रेक एज सच. ठीक है, तो व्हेन वी रीच टू अ पीक अगेन इट विल गो डाउन. या फिर हम लोग एक बॉल की बात करते हैं, तो जब बॉल एक पीक पे पहुंच जाता है देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग. तो ये जो बूम पे है इट इज़ अ पीक एंड फ्रॉम देयर इट विल स्टार्ट फॉलिंग. तो जब वो गिरने लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेशन. ठीक है, ओके. तो ये स्लो डाउन है. अच्छा, बूम के बाद में रिसेशन है. अगर हम रिसेशन को नहीं रोक पाते हैं, इफ़ यू कांट स्टॉप द रिसेशन, ये जो बॉल है वो और नीचे जाएगा एंड इट विल गो टू द डिप्रेशन. डिप्रेशन कैसी सिचुएशन है? व्हेन यू कैन से द डिमांड is low. As the demand is low and supply is high, सप्लाई ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई, उसकी वजह से प्राइस इज़ मूविंग टू अ वेरी 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 लो एक्सटेंट. फॉर एग्जाम्पल
हाउसिंग, लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोग घर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो दे आर डिमांडिंग लेस हाउस। तो बिल्डर क्या कर रहा है, प्राइस कम कर रहा है। प्राइस कम करते करते वो इतनी कम कर देगा बिल्डर प्राइस कि उसको जो है ना मिनिमम प्रॉफिट, जैसे 10 लाख का मकान है और या फिर 1 करोड़ का मकान है, वो पहले बोलेगा 80 में ले लो, फिर बोलेगा 70 में ले लो, यानी उसका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वापस नहीं आएगा। तो डिप्रेशन वो है। डिप्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पर इकोनॉमी बहुत लो चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना की वजह से क्या हो गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी वेंट डाउन एंड ड्यू टू दैट सेल्स वेंट डाउन, और उसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन। तो एक तरह से डिप्रेशन है इन सब नंबर ऑफ सेक्टर्स यू वुड फाइंड डिप्रेशन। ठीक है, दिस इज़ अगेन अ सिचुएशन विच विल नॉट स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इस टाइम पे क्या होता है, प्राइस कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। ठीक है, प्राइस कम हो जाती है तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बिकॉज इफ आई कांट गेट द गुड प्राइस फॉर माई प्रोडक्ट, सो आई विल नॉट मेक द प्रोडक्ट। So that is why the price, when the price will be low, then the you can say supply of the product will go down. अगर supply कम होगी तो production नहीं होगा, production नहीं होगा तो jobs, unemployment will be created. So biggest problem of depression is it increases the unemployment. ठीक है, prices are low, पर price low होने के बाद में भी हमारे पास उसको cover करने के लिए you can say we don't have money. तो इस टाइम पे गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट हेल्प्स यू टू गेट द रिकवरी। वो कैसे रिकवर करेंगे, गवर्नमेंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग द यू कैन से इन्वेस्टमेंट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि अभी ड्यू टू कोरोना डिप्रेशन काइंड ऑफ अ सिचुएशन है, तो व्हाट विल हैपन, देखो अभी बूम किस में है, मेडिसिन में, मेडिसिन फील्ड में बूम है ना, अलग अलग सेक्टर का बताती हूँ। और डिप्रेशन किस में है, जिम्स है ना, जिम है या फिर कोई भी ऐसी जगह पे वहाँ पे डिप्रेशन है। तो अभी तक मेडिसिन में यू कैन से बूम है, मतलब बहुत सारे पैसे दे के भी मेडिसिन नहीं मिल रही तो प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, और जिम और वहाँ पे कोई डर के नहीं जा रहा है तो वहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है। तो टू रिकवर फ्रॉम देम गवर्नमेंट गिव सम यू कैन से गवर्नमेंट एंड पीपल ट्राई टू फाइंड आउट सम इनिशिएशन। कैसे, जैसे मेरे योगा क्लास से कल परसों कॉल आया था कि हम लोग ऑनलाइन योगा शुरू करते हैं। जैसे हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं ना, तो बोले ऑनलाइन योगा हम लोग शुरू कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड? सो आई टोल्ड येस। तो ऑनलाइन योगा से हम लोग क्या करते हैं, उनका बिजनेस फिर से शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं तो वी ट्राई पीपल फ्रॉम देमसेल्व्स दे ट्राई टू टेक इनिशिएशन एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो द इनिशिएशन शुड बी देयर। सो गवर्नमेंट इनिशिएशन और पीपल इनिशिएशन से क्या होता है, डिप्रेशन में से हम बाहर आते हैं एंड वी मूव टूवर्ड्स द फेज ऑफ रिकवरी। ठीक है, फ्रॉम रिकवरी होगा, रिकवरी से हम लोग वापस कहाँ जाएंगे, रिकवरी से फिर मैं बूम की तरफ जाऊँगी, बूम से फिर से रिसेशन होगा, रिसेशन से डिप्रेशन, देन अगेन रिकवरी, देन अगेन बूम, देन रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। दिस होल प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन टिल द एंड ऑफ अर्थ। ये आएगा जाएगा, आप किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। This is the process which will move on and on till we have the economic activity. जब तक दुनिया में economic activity है तब तक we will have this trade cycle, phases of trade cycle. Clear with this? This is all about your you can say phases of trade cycle, and with this we complete your chapter. So I want all of you to complete exercise of chapter 2. ठीक है, and submit in the homework group. Please submit in the homework group. आप लोग इंडिविजुअली मुझे सबमिट नहीं करेंगे, so that the monitors would check and they will give me the report. ठीक है, so please submit your homework in the homework group. अगर आप homework group में नहीं हो मुझे inform कर दो, I will add you in your respective class homework group. Okay, so with this we complete your lecture. Stay home, stay safe. Goodbye for now, students.